Hello everyone. Today we are starting our next topic related to the name reactions mechanisms. So today we are going to work on this Bachmann reactions. Actually, generally the Bachmann's reactions are two types. The first one is known as the rearrangement. Okay. And the next one is known as the fragmentation. The both reactions are competing to each other. The lots of question is coming on the behalf of the fragmentations as well as the rearrangement reactions. So first of all, we are working on this rearrangement, and we are just moving on our fragmentations reactions. So here are the reactions. What is the importance of this reaction? In this reaction that take place in the presence of Lewis acid as well as in the presence of H positives or acids, in which any ketonics or double bonds or oximes is able to convert into the amide or lactam, okay, like to be a caprolactam for synthesis of the polymers, okay. So but except this, to synthesize of the polymers and caprolactams, we need that reactions to synthesize the different types of these medicines like paracetamol and all these things. So these reactions have its own importance. So in these reactions, we are going to just rearrangement reactions, in which a rearrangement is take place when it form oximes. So from carbon to nitrogens, an important compound is migrating, and here we are working on some migrating aptitude is also the which groups are migrating from carbon to on nitrogens, and how we are deciding which part of those who attach with the carbon atoms are migrating towards the nitrogen and from which directions. The stereochemistry is also working here. On the behalf of the stereochemistry, we are able to define their proper products. So see guys, we are starting from the Bachmann's rearrangement reaction. The first one is Bachmann reactions is another examples like to be Baeyer-Williges oxidation reaction. But here the priority related to that migrating group is totally different. Okay. So first of all, we deciding the just working on the Bachmann reactions. We are taking here a ketones. A general reaction says. So general reactions of this one is here the ketones. This one is ketones is treated with first of all ammonium hydroxide NH2OH in the presence of acids, and second one we are taking H2SO4 and we are finding the product. So it's we are starting with the help of a simple example, then we are taking a cyclic molecule is also. So see guys, first of all what happened, the ketonic group is generally converting into this oximes. तो आप चाहते हैं, अभी मैं आपको convert करके दिखाऊंगा कीटो को oximes में, फिर उसके बाद आप चाहें तो फर्स्ट स्टेप को नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट उसको oximes में कन्वर्ट कर सकते हैं. We don't need to take such a long directions. Okay, हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हम उसको oximes में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. So see in the first step what happened. In the first step, this one is CH3. These are examples of the acetone. So here NH2 and OH is able to react the strong basic components. So what happened? It's also H positive ion is also here. So H positive ion is moving towards this oxygen's lone pair, and NH2 is attacking on the back sides. Okay. So it's giving you importance another component, that is CH3 C. This is O and H, that one is CH3 and this one is NH, H and OH. Here the nitrogen contains with charge, positive charge. So यहाँ पे आपका नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है. ये नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आपका क्या होगा, जनरली रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव. तो सेकंड केस में जो आपका फॉर्मेशंस होगा वो क्या होगा, दैट वन इज CH3. This is OH and this one is CH3. फिर यहाँ पे आपका जनरली क्या होगा, it forming a NH and OH. Okay, ये आपका क्या बनेगा, NH and OH formations होगा. फिर जनरली हम क्या करेंगे, from here is also we are taking double bonds. यहाँ पे double bond formations होगा. The lone pair of electrons is moving inside directions. The OH is moving outside by taking its electrons. Okay. So OH बाहर निकला, so it giving you next reactions, that is CH3 C double bonds O, sorry, it's removing outside,
इट्स गिविंग यू अ डबल बॉन्ड्स. इसको जरा ऊपर बना देते हैं. दैट वन इज N. Here and hydrogen is also here and OH is also here. So nitrogen containing a positive charge. And those OH is removing in the form of negative. It's taking a proton from here and hydrogen giving its electron to the nitrogens. A very important compound is formed here. अब यहाँ पे वो compounds बन गया है. Okay, जो आपको show करना था. That one is CH3. यहाँ पे compounds formation हुआ. That one is CH3, C. That one is CH3. This is double bond and O or H. So guys, that component is generally known as the oxynes. इसको आप generally क्या बोलते हैं? Oxyne formations की conditions बताते हैं. That oxynes also have certain kinds of stereochemistry. अब इस जो oxynes formations हुआ, इस oxynes की stereochemistry है. Stereochemistry क्या है? अगर किसी conditions में आपको OH इस तरह से दिया गया है, okay? So that one is OH suppose and this one is lone pair of electrons. So ये OH इस CH3 के behalf में क्या है? ट्रांस कंडीशंस में है. So अगर रीअरेंजमेंट के चांसेस बनते हैं तो CH3 माइग्रेट होकर जो ट्रांस कंडीशंस में है वो एंटी साइड से माइग्रेट होकर क्या करेगा? अटैक करेगा, मूव करेगा बैक साइड से. अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइंस नहीं है तो फिर हम किस पे बेस करते हैं? हम डिपेंड रहते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड्स पे. So जो कौन माइग्रेट करेगा उसके एप्टीट्यूड्स पे, उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं. So here the migrations or rearrangement is take place on the behalf of the stereochemistry or on the behalf of the migratory aptitudes. वो migratory aptitudes क्या है इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ. तो first of all see in the first step we have formed a oxyne. पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब सेकंड स्टेप में ये रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होगी? एसिड की प्रेजेंस में. तो नेक्स्ट रिएक्शंस में आप क्या कर सकते हैं? जहां डबल बॉन्ड और लगाए वहां डायरेक्टली क्या कर लें? ऑक्साइन ग्रुप लगा लें. तो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा. सो वी नीड टू विप आउट दिस स्टेप्स बिकॉज़ वी नीड मोर स्पेस. तो आपका ऑक्साइन फॉर्मेशन हुआ. जस्ट रिमेंबर इट हाउ डज ऑक्साइन फॉर्म. हम बैकमैन्स रिएक्शंस की बात कर रहे हैं. Generally we are taking oxynes here. So see in case of the oxynes in the next step the oxyne is capable to react with the sulfuric acids. Okay, that one is CH3. This one is double bond and OH, and here is a lone pair of electron is available. So see guys, that reaction is take place in the presence of H positive and HSO4 negatives. Okay, so H positive is attracting towards this OH lone pair. OH lone pair की तरफ attracts हुआ तो क्या बना जनरली आपका? That one is OH2. It's carrying a positive charge. It's a lone pair of electron, is double bond carbon, CH3, and this one is also a CH3. That OH is removing by taking its electrons. तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके वो क्या करेगा? मूव करेगा. मूव करा. नेक्स्ट कंपोनेंट्स क्या हुआ आपका? एक ऐसा कंपाउंड्स बना, इसको जरा रोटेट करके मैं लिख रहा हूँ इस पूरे कंपाउंड्स को. That is CH3. That one is carbon. CH3 guys. That is double bond is here. And N carrying a lone pair of electrons. After the oxygen is taking its own electron and removing in the form of water, so it's contain a positive charge. अब इस रिएक्शंस में ऑलरेडी ज्योमेट्री स्टीरियो दी गई थी कि OH इसके ट्रांस हैं. तो इसकी जो एंटी साइड्स की तरफ जो अवेलेबल मिथाइल ग्रुप्स होता है, अगर आपको OH ऐसे रिटेन करके दिया जाता है ज्योमेट्री के बेस पे, तो इस माइग्रेटरी ग्रुप्स का क्या होता है? यहाँ पे माइग्रेशन चलता है. सो दिस CH3 ग्रुप इज माइग्रेटिंग फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक, बट किस साइड से? अपोजिट साइड से होगा, क्योंकि इस साइड से आपका लोन पेयर भी क्या है? अवेलेबल है. सो क्या हुआ? दैट वन इज CH3, दिस वन इज CH3. अब देखिए इस एंटी साइड पे एक पॉजिटिव ऑर्बिटल लोब्स था. अब यहाँ पे भी जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके माइग्रेट करेगा, ओके, CH3 नेगेटिव के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? आपका एक पॉजिटिव लोब्स डेवलप हो जाएगा. डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस कार्बन. सो इट्स कैरिंग अ कार्बन, दिस इज अ नेगेटिव, इट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज CH3. सो अब जनरली क्या है, यहाँ पे क्या डेवलप हो गया? आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा? आपका जो वाटर से बाहर निकला, water is H2O, O and H. The lone pair of water is available for this lobes. Okay, यहाँ पे lobes के लिए available है. फिर आपका next process में क्या बना? That is
CH3C डबल बॉन्ड N, here lone pair of availables, उसके नीचे क्या रहा आपका CH3, then यहाँ पे आपका क्या अटैच हुआ O, H और H. Here is a positive charge in oxygen, so positive charge निकल जाएगा minus H positive, तब आपको मिलेगा this is CH3 carbon double bonds N, lone pair is there and this one is CH3. यहाँ पे आपका क्या रह गया O और H. O और H रहा. So guys, O और H रहने पे क्या होगा? Generally, this electron is migrating here and this electron is moving toward the nitrogen and hydrogen is moving on toward this nitrogen. तो आपका जो component formations हुआ वो generally क्या है? This is CH3, C, ये आपका सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हुआ NH, CH3 और C के ऊपर क्या डेवलप हो गया CO. तो ये आपका क्या डेवलप हो गया CO NH CH3. इट्स अ काइंड ऑफ दी अमाइड्स. ये क्या डेवलप हुआ आपका अमाइड टाइप ऑफ CO NH और CH3 बॉन्ड्स क्या हो गया यहाँ पे फॉर्मेशंस हो गया. सो दैट इज द फॉर्मेशंस ऑफ द अमाइड्स एंड दैट इज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. ये क्या था आपका बेकमैन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में फॉर्मेशंस रहा. दैट इज CO NH CH3 इज अमाइड ग्रुप्स बट always look it here, okay, migratory aptitudes की तरफ को अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ. तो इस तरह से आपकी रिएक्शंस प्रोसीड होगी और इसका जो प्रोडक्ट्स है वो क्या बना CH3 CO NH और CH3. इट इज अ काइंड ऑफ अमाइड्स. सो इट इज द फॉर्मेशंस ऑफ द अमाइड्स बट आई एम जस्ट गिविंग यू सम इन्फॉर्मेशंस रिलेटेड टू दैट स्टीरियोकेमिस्ट्री. स्टीरियोकेमिस्ट्री तभी यहाँ पे वर्क करेगी जब आपको दी गई है. अगर नहीं दी गई है तो भी मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ. सो सी here two assumptions are here. Migration aptitudes. Okay, migration aptitude says the migration order is hydrogen, phenyl, tertiary carbocation, secondary carbocation and primary carbocations. अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोवाइड नहीं करी गई है, if suppose they are not giving you any stereochemistry, so at that case the migrating aptitude is first of all hydrogen is there. The hydrogen is moving toward the nitrogens, either then phenyl, tertiary carbon, secondary carbon and primary carbons. Okay, that in the conditions of the migratory aptitudes. ये migratory aptitude की क्या है आपकी conditions provide कराई गई हैं. So और जो attacks होगा वो भी opposite direction से move करा जाएगा. That is the case of the migratory aptitudes. But if suppose stereochemistry is there, अगर आपको stereochemistry दी गई है किसकी N और OH की ऑक्साइड ग्रुप का, अगर आपको स्टीरियो दिया गया है तो उस केस में क्या होगा, जो अपोजिट डायरेक्शंस में अपोजिट डायरेक्शन ग्रुप्स आर माइग्रेटेड इज माइग्रेटेड. तो जो अपोजिट डायरेक्शंस में लगा हुआ ग्रुप है लाइक दिस, अगर आपको इस तरह से स्टीरियो दी है, आपको दिया है यहाँ पे दैट इज N और यहाँ पे आपको दिया है O और H. इसके अपोजिट अगर आपका CH3 है और यहाँ पे H है और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो OH के अपोज में क्या है CH3. इसका अरेंजमेंट आपको दिया है. सो इट मींस CH3 विल बी माइग्रेटिंग फ्रॉम हियर टू हियर. जब OH निकल जाएगा तो अपोजिट साइड से CH3 माइग्रेट करेगा. अगर स्टीरियो अवेलेबल नहीं है तो माइग्रेशन एप्टीट्यूड्स ये वर्क करेगा. सपोज अगर आपको स्टीरियो नहीं दी गई है तो हाइड्रोजन और मिथाइल में से कौन माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन माइग्रेट्स करेगा. So this is the Beckmann rearrangement reactions. I am giving you the another examples of the Beckmann rearrangement reactions. Okay. So that is the criteria of the migrations from carbons to the nitrogen. The another examples I am giving you. The next reaction says this one is sulfur. Okay. This one is sulfur. Sulfur, this such type of rings are also participating. That one is carbon. This carbon contain a double bond, and this one is CH3. This one is also important compounds. Here we are also taking the same one. First of all, we are taking NH2OH. In second step, we are taking H2SO4. तो मैंने आपको पहले बोला था इसको शॉर्ट करने के लिए क्या कर लीजिए, क्योंकि ये ऑक्साइन फॉर्मेशंस करेगा. We have already taken here a strong base. तो
इसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऑक्साइड्स में कैसे कन्वर्ट करना है इसको, आपने कुछ नहीं करना, ये सल्फर ऐसे ही अवेलेबल रहेगा और जो आपका कीटोन्स ग्रुप है इसकी जगह क्या लगा देंगे NO, और क्योंकि वी नो वेरी वेल कि इसमें ऑक्साइड फॉर्मेशंस होना है तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट न करके इसमें प्रोडक्ट की तरफ को मूव करेंगे। In the second step, what we are doing is we are taking H2SO4 giving you a H. So here a lone pair of electrons are available, is moving toward this a lone pair of electrons. The next one is sulfur. This one is double bonds. Carbon atom is here. This one is CH3 is here. This is double bonds, nitrogens O or okay. So O और H यहाँ पे आपको अवेलेबल है। H ने अटैक करा था, it's converting OH2 and carrying a positive charge. The OH2 is removing in the form of H2O by taking its electrons. तो यहाँ पे minus H2O निकल चुका है। The next one is the left bulky groups, bulky mass is here. So here the carbon is double bond nitrogens having a positive lobes as well as a lone pair of electrons and that one is CH3. अब यहाँ से migrations किसका होगा? Migrations देखा जाता है। माइग्रेशंस के बिहाफ पे स्टेबिलिटी देखी जाती है। क्यों? अब देखिए, अगर CH3 ग्रुप करेगा माइग्रेट्स और यहां से इस बॉन्ड्स का माइग्रेट्स होना काफी, अगर बॉन्ड यहां से टूटता है तो दैट कार्बन कैरिंग विच इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट कार्बन, ये रिंग का जो कार्बन है, ये कार्बन कितने से कंपोनेंट से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है। ओके, एंड दिस मिथाइल ग्रुप इज आल्सो डिकम्पोजिंग फ्रॉम हियर। ओके, अगर ये मिथाइल ग्रुप टूटता है, ये माइग्रेट्स करता है तो ये भी आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइंस है, मगर यहाँ पे जो है ये कार्बन जो है सल्फर और कार्बन दोनों से जुड़ा है, सो दिस वन इज मोर स्टेबल, इसको प्रायोरिटी देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड्स क्या होगा, डिकम्पोज होगा एंड मूविंग टुवर्ड दिस पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट डायरेक्शन से मूव करेगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज सल्फर इज हियर, दिस इज डबल बॉन्ड। ओके, द नेक्स्ट वन इज ये सल्फर का जो कंपोनेंट्स था ये नाइट्रोजन से आपका जुड़ गया, दिस वन इज नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन कैरिंग अ डबल बॉन्ड इज अटैच्ड विद दिस CH3 ग्रुप्स और कार्बन पे इस ग्रुप के डिकम्पोज होने से कैसा चार्ज जनरेट हो गया आपका, यहाँ पे जनरेट हुआ पॉजिटिव। इन द नेक्स्ट स्टेप सेम एज वी आर टेकिंग व्हाट, वाटर H2O, O का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पे। नेक्स्ट आपका क्या फॉर्मेशन होगा, जनरली दे गिविंग यू such a compounds, this one is N is equal, double bond is here the OH2 is attached, contain positive charge and this one is CH3, OH2 है तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक प्रोटॉन रिमूव होगा, this is H positive, after removing H positive C which thing is formed, this is sulfur, double bonds, okay, that one is N and this is double bond और यहाँ पे आपका रहा कार्बन and this one is OH and this is CH3। फिर से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे माइग्रेट करेगा, ये ऊपर आएगा और ये प्रोटॉन निकलकर नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। जो आपका मेन प्रोडक्ट बना, देखिए योर मेन प्रोडक्ट, योर मेन प्रोडक्ट इज हियर, क्या रहा आपका मेन प्रोडक्ट, दैट वन इज सल्फर रिंग, थायोल रिंग। ओके, द नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन कैरिंग H and then CO और CH3, क्या डेवलप हुआ आपका, अमाइड, अमाइड ग्रुप क्या हुआ, जनरेट हो गया। सो दैट इज द एग्जांपल्स इन केस ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड्स। इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड्स में भी क्या हुआ, रीअरेंजमेंट्स होता है। एक्चुअली व्हाट हैपेंड हियर, if the decomposition is take place on both sides, in case of the Bachmann rearrangement no stable, more stable carbocation is formed। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी यही है कि उसमें कहीं से भी अगर बॉन्ड टूटकर नाइट्रोजन की तरफ को मूव करता है तो वो कंपाउंड एक स्टेबल कार्बोकेटाइन के फॉर्म में नहीं होता। ठीक, यही डिफरेंस है रीअरेंजमेंट्स में और किसमें, फ्रेगमेंटेशंस में। फ्रेगमेंटेशन के केस में भी आप देखेंगे उसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा जब वो यहाँ से डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन की तरफ को मूव करने लगेगा, तो वहां पे फ्रेगमेंट्स में मूवमेंट नहीं होता, कंपाउंड जनरली टूट जाता है। बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ द बैकमैन रिएक्शंस, यहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन न बनने के कारण ये कंपाउंड्स कहां की तरफ को मूव कर जाता है, नाइट्रोजन की तरफ को क्या कर जाता है, मूव, बिकॉज जब आप इसे यहां से तोड़ेंगे तो ये आपको कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा, बिकॉज
दे फॉर्म अ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। इस केस में इसीलिए ये माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन की तरफ को। ओके, आई एम गिविंग यू एग्जांपल। सो दैट वाज द एग्जांपल्स ऑफ द बैकमैन्स रिएक्शंस। और इसके अलावा आप ये और भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तो आप इसको करिएगा। देन आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स आल्सो। सो दीस आर द बैकमैन रिएक्शंस। ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शन इसीलिए है बिकॉज इन बैकमैन रिएक्शंस when they are movement or rearrangement is take place, and due to this rearrangement they are not capable to form more stable carbocation, so that's why the rearrangement is take place. But what happen in case of the Bachmann's fragmentations, when the bond breaking is take place there, so stability is formed, stable carbocation is formed, and due to the formation of the stable carbocations they are not able to showing any kind of rearrangements. They will be totally, that bond is decomposed or form of fragment. वो fragments होकर टूट जाता है but movement नहीं कर पाता. That's why that is the difference in between the rearrangement and your next is the fragmentation reactions. Okay, just giving you the next example is Bachmann's fragmentation reaction. The Bachmann fragmentation reaction, the similar kind of reaction is take place. You also form, but here some new types of concept is there. Bachmann fragmentation reaction जो हुआ है वो इन compounds के इन reagents की presence में होती है, SOCl2, POCl3. We are taking such type of reagents in case of this Bachmann's rearrangements. Okay, so देखिए इसमें क्या formations है. The first example is this one is a cyclic ketone. Here we are taking cyclic ketone and here we are taking amine. The another one is also amine. You know very well. Suppose what happened in that reactions if we are taking generally the such type of compounds. यहाँ पे भी आपका सिमिलर है. हम यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशंस को नहीं देख रहे हैं. हम यहाँ पे आपका क्या जनरली क्या कर रहे हैं. फर्स्ट स्टेप में बैकमेन्स की तरह ही होगा. NH2OH ले रहे हैं because this one is the strong base. Again they react with in the presence of acid, they giving you oxides. तो शो करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसको oxides में कन्वर्ट कर सकते हैं. That one is amine. The another one is also amine. So the next one is NH and or it also forms oxides. ये आपका क्या फॉर्मेशन चला? ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ. अब इसमें आप क्या लें? कोई भी रिएजेंट ऊपर से ले लें. सपोज आप ले लेते हैं POCl3. अगर आप यहाँ पे POCl3 लेते हैं तो P double bond O Cl, Cl and Cl is here. In the next one, OH is here behaving like to be a nucleophile. So it's attacking on the phosphorus. It's moving upward directions. तो जरा इसका ये स्टेप देख लीजिए. In this reactions, that is bonds. Ring is here. 2-methyl is here. Double bond nitrogens is O attached with here. O attached with phosphorus. O contain negative charge and O already have one H, okay, is carrying a positive. और कितने Cl attached हैं? कम से कम 3 Cl attached हैं. ये O जो है माइग्रेट करके नीचे आता है, Cl निकलता है और H भी यहाँ से निकलता है. They are moving in the form of HCl. Okay, बना क्या आपका? The rings giving you such compounds. ये आपका it giving you double bond N. Okay, this is P O P, then we are getting double bond O Cl and Cl. यहाँ पे आपका क्या जुड़ गया? O P Cl and Cl attached हो जाता है. So that they giving you O P Cl and Cl. So then what happened? Again, फिर the next step, O is taking its own electron. O अपने इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से? नाइट्रोजन से, because it is more electronegatives. So they giving you another compounds, double bonds. Okay, this is a double bond N. वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लेकर गया तो आपका क्या रहा? नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. यहाँ पे क्या रहा? Mn और Mn. अब यहाँ देखिए रीअरेंजमेंट का केस आता है. क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा? अगर बॉन्ड यहाँ से टूटता है सपोज तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? ओनली वन कार्बन. सो इट गिविंग यू प्राइमरी कार्बोकैटायंस. अगर बॉन्ड्स में इस साइड से डिकम्पोज करता हूं so that carbon contain which charge? Positive. So it giving you positive. और देखिए यहाँ पे क्या है? Stable. A1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. So it giving you a tertiary carbocation.
तो in case of the Beckmann fragmentation, they giving you a more stable carbocations. So here यहाँ पे अब माइग्रेशंस ना होकर क्या होगा, डायरेक्टली जो कंपाउंड्स का जो रिंग्स है वो जनरली क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी और वहीं से उसका क्या बन जाएगा, फ्रैगमेंट फॉर्मेशंस हो जाएगा. ओके, तो बॉन्ड कहां से टूटेगा, टर्शियरी की साइड से, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, इधर, और C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा. तो आपका जनरली क्या हुआ, दिस वन, यहां से आपका बॉन्ड डिकम्पोज हुआ, ये क्या बना आपका, इट कन्वर्टिंग C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां से बॉन्ड टूटा था, सो दैट कार्बन कंटेन विच चार्ज पॉजिटिव, हियर वन Me इज हियर, वन मोर मिथाइल इज हियर. ओके, अब देखिए सॉल्यूशंस में क्या है, Cl नेगेटिव आयंस. तो जो Cl निकला था वो Cl नेगेटिव आयंस कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे. तो इसके थ्रू जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है आपका, इट्स गिविंग यू अ C ट्रिपल बॉन्ड N and they giving you C and Ne, two methyl group is here और one is chlorine. Okay, आपको मेन कंपोनेंट्स क्या मिला, क्लोरीन और N-मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूट मिला. और आप चाहें तो साइनाइड्स को यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, लेस अमाउंट ऑफ अगर आप लेंगे वाटर तो आपको अमाइड मिलेगा, अगर आप ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो आपको एसिड मिलेगा. ठीक है, तो वी आर एबल टू कन्वर्ट दिस साइनाइड इनटू अमाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. So they giving you the further product. So but that is the difference, that step difference is, that is the main difference in between the Beckmann fragmentation and Beckmann rearrangement. तो rearrangement के केस में जब आप बॉन्ड्स को डिकम्पोज करते हैं, so they not giving you any stable carbocation. तो उस केस में जब स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनता तो उस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप क्या करता है, नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट कर जाता है, that is the rearrangement. But what happened in case of the Beckmann fragmentations? अब Beckmann fragmentations में क्या है, कि the Beckmann fragmentation says if the bond is decomposed and they giving you a more stable carbocations, तो यहाँ पे rearrangement ना होकर क्या हो जाता है, fragmentation. Fragment मतलब टूटना अलग-अलग parts में. तो यहाँ पे ये compound टूट जाता है and rearrangement is not take place. यहाँ पे rearrangement नहीं होता, केवल bond shift होता है, बाकी का compound as well as क्या रहता है, same. So that is the difference between the Beckmann's rearrangement and Beckmann fragmentation. I am giving you one more examples related to that Beckmann's. Okay, एक examples और देख लीजिए और इस step को याद रखिएगा. तो देखिएगा जब एग्जाम्स में आपको Beckmann fragmentations करना है या Beckmann's rearrangement करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, कार्बन की स्टेबिलिटी पे. अगर बॉन्ड्स को डिकम्पोज करने पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायंस बनता है तो फिर वो आपको क्या देगा, Beckmann's which one is fragmentations. अगर उस इंटरमीडिएट उस स्टेज में स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशंस ना होकर लेस स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन या कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, तब वो आपको which one reactions has giving there at that time they giving you a Beckmann's rearrangement reactions in case of unstable carbocations or less stable carbocations. If they giving you a stable carbocation, so it means they always giving you Beckmann's which reactions, fragmentation reaction. The next examples we are taking here in case of a cyclic compound, a bridgehead compound, non-bonded type of compound is here. That one is methyl groups. It is double bonds O. तो इसका भी रिएक्शंस आप क्या कराएंगे, देखते हैं ये फ्रेगमेंटेशंस देता है या रीअरेंजमेंट्स देता है. ओके, सो सी गाइस, हियर वी आर वर्किंग ऑन जस्ट अनदर कंपाउंड्स. तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल NH2OH लेते हैं. ओके, एंड यू नो वेरी वेल द NH2OH in the presence of acid giving you oxime. तो सबसे पहले हम क्या कर लें, मैकेनिज्म्स ना दिखाकर इसको डायरेक्टली ऑक्साइम्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं. This one is methyl groups. ये आपका methyl groups है. Okay, behind उस साइड से they giving you that one is N or OH. अब यहाँ पे आप reaction कराइए. Here we are taking some reagents like to be plus PCl5 ले लेते हैं. Cl, 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 Cl और Cl. This is PCl5. तो PCl5 में जनरली क्या होगा, इट गिविंग यू, यहाँ से आपका एक H जनरली माइग्रेट्स करने के लिए तैयार रहेगा. ओके, अब यहाँ पे HCl निकल जाएगा एंड OS ऑक्यूपाइंग द प्लेस ऑफ दिस वन. यहाँ पे दो क्लोरीन निकलेंगे, एक तो क्लोरीन HCl के फॉर्म में निकलेगा, आपको पता है ये, और दूसरा क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा.
और जनरली आपका कंपोनेंट्स क्या बनेगा, POCl3 और ये बॉन्ड्स यहाँ से टूटेगा ऑब्वियसली, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो आपका जो कंपोनेंट्स बना जहां से हमें डिसाइड करना है ये है क्या, दैट वन इज ये रहा, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ तो अब आप देखिए क्या होगा, अगर बॉन्ड्स यहां से टूटेगा इफ, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ओके। इफ द बॉन्ड इज डिकम्पोज्ड फ्रॉम दैट साइड, तो दैट कार्बन कंटेन्स, if it decompose this side, तो that carbon contain positive charge। मैं फिर से आपको इसकी इंटरमीडिएट स्टेट को जरा यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। हमारे पास जो इंटरमीडिएट स्टेट बनी वो इस तरह से बनी है, ये एमी है बैक साइड में। तो यहाँ पे क्या था, जनरली इंटरमीडिएट स्टेट ये बनी जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर बॉन्ड्स यहाँ से डिकम्पोज होकर यहाँ आता है तो दैट कार्बन कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ओके। इफ द बॉन्ड इज डिकम्पोज फ्रॉम दिस साइड तो दैट कार्बन कंटेन पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज से कितने कार्बन अटैच्ड हैं, 1। इस पॉजिटिव चार्ज से कितने कार्बन अटैच्ड हैं, एक मिथाइल 1, एक ब्रिज हेड 2, एक बैक साइड 3। तो ये तो आपको देगा टर्शरी और ये आपको देगा व्हिच वन, प्राइमरी। तो देखिए हमारा टर्शरी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर यहाँ रीअरेंजमेंट होना पॉसिबल नहीं है। दे गिविंग यू अ व्हाट, दे गिविंग यू अ बैकमैन फ्रेगमेंटेशंस। अब यहाँ पे क्या होगा, चलो अब यहाँ से इसको डिकम्पोज करते हैं, तो इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड्स के वो कहां की तरफ मूव करेंगे, एन की तरफ को। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट रिएक्टेंट क्या बना आपका, दैट वन इज ये MElC रहा, Me कैरिंग विद चार्ज पॉजिटिव, ये बॉन्ड ऐसी रहा, दैट इज कार्बन। अब ये बॉन्ड भी यहां डेवलप हुआ था, तो इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड्स। आपको पता है आपके सॉल्यूशन में एक एक्स्ट्रा क्लोरीन निकला था, तो ये क्लोरीन्स कहां अटैक करेगा, दिस क्लोरीन नेगेटिव इज अटैकिंग ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज, जो मेन ब्रिज हेड कार्बन्स था उस पे अटैक कर जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशंस होगा यहाँ पे वो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये डबल ब्रिज हेडेड है। यहाँ पे जनरली क्या था आपका, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा था, दैट वन इज Me, और अब क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, Cl अटैच हो जाएगा। So they giving you such kind of the products, that is the difference in between the Beckmann's reactions as well as the Beckmann fragmentation reactions, okay। So ये आपका क्या है, कंपोनेंट्स है। अब इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह से, देखिए कितनी रिंग है, 1 2 3 4 5 पेंटागोनल रिंग्स हैं यहाँ पे, दैट वन इज पेंटागोनल रिंग्स। ये ब्रिज हेड था, अब इस पे क्या जुड़ा है, Cl, और क्या जुड़ा है आपका एक Me, और उस वाले से क्या जुड़ा है, C ट्रिपल बॉन्ड N। सो व्हाट हैपेंड गाइस, आप चाहते हैं, आप चाहेंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं OH नेगेटिव लेकर E1, ओके। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका H, OH is taking hydrogen from here, is the bond is going there and Cl removing from here। तो आपका जो कंपोनेंट्स बना उसमें क्या बन जाएगी, आपकी एक एल्कीन फॉर्मेशन देखने को मिलती है, C ट्रिपल बॉन्ड N। So that is the product, and due to the formations of tertiary stable carbocations here, so group is not migrating, they generally giving you a stable carbocation, so ये fragments में टूट जाएगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा फ्रेगमेंटेशंस में जाएगा और कौन सा रीअरेंजमेंट में। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशंस की कोई भी चांसेस नहीं है तो फिर आप क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करके आपका अमाइड बनेगा। खैर अमाइड बनने को यहाँ पे भी बन जाएगा, क्योंकि साइनाइड को लेस वाटर के साथ अगर हाइड्रोलाइसिस करें तो अमाइड ही फॉर्मेशंस करता है। तो लास्ट वन इज एप्लीकेशंस ऑफ द बैकमैन रिएक्शंस। देखिए जरा लास्ट एप्लीकेशंस क्या है, विद द हेल्प ऑफ न्यू सर्चिंग जर्नल्स। अभी ये करंट जर्नल्स के एप्लीकेशंस हैं। जनरली इट इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ द पैरासिटामोल ड्रग्स फॉर्मेशन। इसका यूज कहां किया जाता है, ड्रग्स प्रिपरेशंस किया जाता है, वो भी कौन सी ड्रग्स में, एक ड्रग्स है, ऐसे बहुत सारी ड्रग्स बनाई जाती हैं, पैरासिटामोल। We are going to prepare the paracetamol by using this compound. So देखिए इसमें क्या है, generally what we are doing, we are taking important components of this family is alcohol. इसमें आप करेंगे अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल्स का क्या कराया जाता है, एसाइलेशन। So acylation is acetyl compounds लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, और CO एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे O, C
C double bond O और CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम HF। तो आपको पता है कि जो इसमें इंसर्शंस जनरली अटैचमेंट्स होगा पैरा पोजीशंस में, दैट इज CO और CH3। अब इस CO CH3 को बैकमैन रिएक्शंस में ऐड करिए। इसमें क्या ऐड करते हैं हम, NH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम गाइस। तो आपको पता है ये जो ग्रुप था मैंने बोला था तो कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देना आपका, ऑक्साइन्स में। ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दे गिविंग यू OH और यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, कार्बन, दैट इज CH3 और यहाँ पे क्या लगेगा आपका डबल बॉन्ड N और OH ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपका क्या लगा, डबल बॉन्ड N और OH ग्रुप्स लगा। डबल और N और OH ग्रुप्स लगने के बाद इसका रिएक्शन CF3COOH के साथ कराते हैं। यू नो दैट इज अ पेरोक्साइड कंपाउंड, ये आपका एक पेरोक्साइड कंपाउंड है। इस पेरोक्साइड को अम्बरलेट इसमें लेते हैं, अम्बरलेट 12 इसमें लिया जाता है, इट्स अ मीडियम, ओके। सो व्हाट हैपन, पेरोक्साइड्स लेने के बाद इसमें जनरली आपका क्या होगा, फॉर्मेशंस ऑफ दी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज नोन एज द पैरासीटामोल। तो आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस होगा और ये आपका क्या बनाएगा, पैरासीटामोल बनाएगा, जो आपका ये था, ओके। N किस में कन्वर्ट होगा आपका, NH में, और दूसरा क्या बनेगा आपका NH है, फिर ये बनेगा C डबल बॉन्ड O और CH। It is best applications of the preparations of a medicine that is known as the paracetamol। क्या बन गया आपका, पैरासीटामोल रिएक्शंस है। तो इस रिएक्शंस में आपने बैकमैन्स रीअरेंजमेंट्स कराया। सो ड्यू टू द बैकमैन्स रीअरेंजमेंट्स दे गिविंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड द लास्ट अमाइड ग्रुप फॉर्म हुआ, किस ग्रुप से, आपका जनरली कीटो ग्रुप से। तो अभी हम यही करते आ रहे थे, बट इट इज नॉट टू बी अ काइंड ऑफ द फ्रेगमेंटेशन। ये बैकमैन फ्रेगमेंटेशंस नहीं है, ये क्या है आपका बैकमैन्स रीअरेंजमेंट्स है, ओके। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट्स के थ्रू ये आपका क्या हुआ, जनरली फॉर्मेशंस हुआ, ओके। सो यहाँ पे आपका फ्रेगमेंटेशंस को फॉलो, रीअरेंजमेंट को फॉलो करते हुए इसने क्या बनाया, पैरासीटामोल। बट जब हम इसमें क्या लेते हैं आपका पेरोक्साइड्स यहाँ पे जनरली प्रेफर किया जाता है। सो गाइस दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द फ्रेगमेंटेशंस एंड रीअरेंजमेंट्स। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड्स आपने देखा, हमारे इस रिएक्शन से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड्स जो आपने देखे वो बायोमोलेकुलर ऑक्सीडेशंस में अलग हो जाते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आपका बैकमैन्स में जो माइग्रेशंस था, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड था, वो था हाइड्रोजन, फिर फिनाइल, फिर टर्शियरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी एंड प्राइमरी। जबकि आप बायोमोलेकुलर ऑक्सीडेशंस की बात करें तो इन दोनों में केवल चेंजेस आते हैं। वहां फिनाइल पहले माइग्रेटरी ग्रुप की तरह वर्क करता है, फिर हाइड्रोजन, बाकी का क्या रहता है, सब सिमिलर रहता है, ओके। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बैकमैन्स। ये जनरली नीट गेट्स और आपका नेट के एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है, एंड दैट इज आल्सो यूजफुल फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइड्स एज वेल एज द मेडिसिनल कंपाउंड्स। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।